Hello friends, today we will study progressive education. It is an important topic for UGC NET and CTET both. Many questions are asked from progressive education in CTET along with UGC NET in first paper or in education paper. So what is progressive education? Progressive education is defined as an educational movement which gives more importance to experience than formal learning. So, what we see, it is not a formal learning which is being done in traditional schools where teacher comes and teaches, but it is a experiential learning. Here students learn by experience. It is a type of a learning by doing, child centered education. That it is based more on experiential learning that concentrates on the development of child's talents, whereas traditional schools focus on teacher. So traditional school was teacher centered, where teacher is all in all. Whatever he says, students had to learn. So that was monotonical, one-sided, passive. But here child centered learning, here child takes interest, he takes initiative and learns. And he learns by doing himself, either project or any experiment. So it is a progressive type of learning where students are given much importance. Progressive education is pedagogical movement. It is considered as a movement because it has brought reform in the traditional way of teaching. It was started in 19th century. It was started in Europe and United States as reaction to the alleged narrowness and formalism of traditional education. So, traditional education was criticized and it was mentioned as not very helpful for the children. So, progressive education have come. Its main objective was to educate the whole child. Whole child, what does whole child mean? Here, whole child means the holistic development of the child, which includes physical, mental, emotional, intellectual, all types of growth. So he has to be developed in a good learner. His behavior should be changed, his personality should be improved. So all-round development of students includes whole child. So the main objective of progressive education was to educate the whole child, in which his all aspects of development has to be considered. The school was conceived of as a laboratory in which the child was to take an active part. स्कूल को एक laboratory या lab की तरह समझा गया, जहाँ पर चाइल्ड हैज टू टेक एक्टिव पार्ट. वहाँ बच्चे को सक्रिय रहना है. पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड पढ़ाई में बच्चे निष्क्रिय होते थे, वन साइडेड टीचिंग होती थी, तो सारे बच्चे उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते थे. या तैयार होने की क्या बात है, मतलब रिसीविंग एंड पे होते थे, वे सुनते थे, नहीं सुनते थे, समझते थे, नहीं समझते थे. सो हियर in such type of learning, children get the work of their interest and they are active throughout the process of teaching and learning. So the active part, child was to take an active part, and this type of teaching is known as learning by doing. So करके सीखना. So children take interest and learn. Whatever they do themselves, they learn more, and whatever teachers taught them, they learn less. So it assumes that a child learns best by actually performing tasks associated with learning. So here tasks are given to children which are associated with learning, like project work, assignments. So he does himself and learns a lot. In such type of learning, importance is given to subjects in the curriculum are what type of subjects are taught in progressive education. It is creative art,
manual art and experimentation and independent thinking. So children are encouraged to do whatever they like, whatever they create, something new, whether it is absurd or it is irrelevant, but they have to create something new. So it is creativity. What the child does is very much considered as child based. So it is an important part of progressive learning. Manual art and experimentation. यहाँ पर बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं कोई भी चीज को, जैसे प्लांट्स लगाना है या प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, तो दे आर गिवन सीड्स, दे प्लांट द सीड्स एंड दे सी द जर्मिनेशन एंड हाउ प्लांट ग्रोज. सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दे लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग are encouraged. All curricula involve the teaching of knowledge, that is knowledge based curriculum. Here curriculum is based on knowledge, so they learn while doing the things, and learning takes place in such a way. The progressive method of teaching are based on philosophy of John Dewey, that education is life, growth, reconstruction of human experiences and social process. So the name of John Dewey is associated with progressive learning. The main goal of progressive method is personality development through proper stimulation, direction and guidance. So when students are free to learn and they learn according to their desires, so their personality develops in a different way. So they are more confident, they are more active, they are more proactive, better to say, and more interdependent. In progressive school, students learn actively. The students interact with each other and develop social qualities such as cooperation and tolerance for different points of view. So here it helps in developing teamwork, cooperation, tolerance, all the qualities and human values develop in such type of learning. The students solve problems in the classroom similar to those they will encounter in their everyday lives. So whatever problems they solve in the classroom, they can apply their knowledge in their everyday lives also. Basic principles of progressive education. Emphasis on learning by doing. As we know कि this education gives emphasis on learning by doing. Hands-on projects, expeditionary learning, experiential learning. So what is expeditionary learning? तो यहाँ पर जो एक्सपेडिशनरी लर्निंग है वो स्कूल्स होते हैं वहाँ यूएस में. एक्सपेडिशनरी स्कूल्स जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं वो ट्रेडिशनल स्कूल से डिफरेंट होते हैं. हियर स्टूडेंट्स लर्न बाय कंडक्टिंग लर्निंग एक्सपेडिशंस. जैसे हम क्या करते हैं, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, किसी मिशन पे चढ़ना, जाना, पहाड़ पे चढ़ना, समंदर में जाना, तो ये सारे एक्सपेडिशंस होते हैं. तो उस तरह का एक्सपेडिशन वो लर्निंग के लिए करते हैं रादर देन बाय सिटिंग इन ए क्लासरूम. वो क्लासरूम में बैठकर नहीं सीखते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो सुन रहे हैं. इस तरह की टीचिंग इसमें नहीं होती है. वो कोई भी एक सब्जेक्ट को या दो सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ते, बल्कि दे गो आउटसाइड एंड डू एक्सपेडिशन इन लर्निंग. मतलब वो देख कर, चढ़ कर, जान कर सीखते हैं. सो इट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेडिशनरी लर्निंग इज गिवन बाय कुर्ट हान. ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल रिफॉर्म है जो कि कुर्ट हान के आइडियाज पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कुर्ट हान. दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड करिकुलम, फोकस ऑन थेमेटिक यूनिट्स. मतलब कि करिकुलम जो है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बनाया गया है और उसमें यूनिट्स जो है वो थीम पर बेस्ड है. इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनटू एजुकेशन. इस तरह के एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप की भी शिक्षा दी जा सकती है, सो दैट कि चिल्ड्रन कैन टेक रिस्क एंड दे कैन स्टार्ट देयर न्यू प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स.
so they take risk and become adventurous also. Strong emphasis on problem solving and critical thinking. Critical thinking का मतलब है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट कर लेना, बल्कि उसके सारे रीजंस, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सबको जानकर तब एक्सेप्ट, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना. उसके बाद है ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स. सो हियर इन प्रोग्रेसिव लर्निंग स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप एंड विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द सोशल स्किल्स. सो व्हाट आर सोशल स्किल्स? सोशल स्किल्स का मतलब होता है कि हाउ यू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ यू हेल्प अदर्स, हाउ यू स्टैंड फॉर अदर्स, हाउ यू फाइट फॉर अदर्स, और हाउ यू फाइट फॉर गुड कॉज. सो सोसाइटी के लिए आप क्या करते हो, दैट इज कॉल्ड सोशल स्किल्स. सो ग्रुप वर्क से सोशल स्किल डेवलप होता है. नो रोट लर्निंग, लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर क्या है कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है. सो यू हैव नॉट टू mug up the thoughts of teacher or whatever written in the book. So you have not to wrote the things. Rote learning नहीं है, बल्कि क्या है, you have to do the things and understand. So here learning by understanding. फिर एक कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट्स. ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इसमें होते हैं जिसमें बच्चे मिलकर काम करते हैं, कोलाबोरेशन से या कोऑपरेशन से काम करते, तो विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम लर्निंग. एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी. यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब मतलब सबको साथ लेकर चलना, सब जो बच्चा कमजोर है उसके लिए हेल्प करना. डेमोक्रेसी, सबको इक्वल चांस देना, इक्वलिटी एंड इक्विटी की बात होती है कि हर को समान अवसर मिले. फिर है हाईली पर्सनलाइज्ड लर्निंग टू अचीव वंस गोल. अब जिसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट. सो इन प्रोग्रेसिव लर्निंग ईच स्टूडेंट गेट्स द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड ही एक्सेल्स इन दैट. सब्जेक्ट कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ फ्यूचर सोसाइटी. प्रोग्रेसिव लर्निंग में या एजुकेशन में क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, वो फ्यूचर सोसाइटी के हिसाब से पढ़ाए जाते हैं. जैसे क्या है, पहले का ट्रेडिशनल स्कूल में कंप्यूटर नहीं पढ़ाई होती थी, कंप्यूटर था ही नहीं, या भविष्य में क्या आने वाला है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती थी. अभी क्या है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो कंप्यूटर के सारे एक से एक बढ़कर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी सिखाए जा रहे हैं. तो इस क्योंकि फ्यूचर में इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, तो फ्यूचर नीड के हिसाब से पढ़ाई हो रही है. डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स इन फेवर ऑफ वैलिड लर्निंग रिसोर्सेज. अब टेक्स्ट बुक को ऑब्सोलीट किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लर्निंग के, तो उनके आधार पर पढ़ाई करना, एक्सप्लोर करना, गूगल है, ये सारी चीजों को गूगल से और बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें और पढ़ें, इस पर ज्यादा जोर दिया गया. बुक से रट कर और एग्जाम दे देना ऐसा नहीं है, क्योंकि अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो क्वेश्चंस भी आते हैं या जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, अप्लाइड टाइप के होते हैं, जिसमें आपके अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना होता है वाइल आंसरिंग देम. तो इसमें रटी हुई विद्या काम नहीं आती. अगला है एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स. लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये चलती है, जिन ऐसे भी लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लर्निंग हमेशा चलती रहती है. असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्शंस. जो चाइल्ड का प्रोजेक्ट होता है उसके आधार पर उसका असेसमेंट होता है या इवैल्यूएशन होता है. डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटरडिपेंडेंस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले जो थे उन्हें हम प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं. तो प्रोग्रेसिविस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड, विच वी हैव डिस्कस्ड. होल चाइल्ड मीन्स कि मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ऑल राउंड डेवलपमेंट, rather than on the content or the teacher. तो टीचर या कंटेंट के डेवलपमेंट पर या टीचर पे फोकस नहीं करता ये एजुकेशन, ना ही कंटेंट पे, सब्जेक्ट मैटर पर. दिस एजुकेशनल फिलॉसफी स्ट्रेसेस दैट, ये किस चीज पर स्ट्रेस देता है, दैट स्टूडेंट शुड टेस्ट आइडियाज बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. किसी भी आइडिया को वो एक्सपेरिमेंट करके खुद उसमें इन्वॉल्व होके खुद करके सीखें. लर्निंग इज रूटेड इन द क्वेश्चंस ऑफ लर्नर्स. सो व्हाटएवर
what students have learned, it will be clear from their questions what type of questions they are asking. So questions of learner indicates the learning, so what they have learned that arise through experiencing the world. Main idea of progressivism, based on the idea of progress in which advancement in science, technology, economic development and social organization are vital to the improvement of human condition. इट इज़ क्लियर कि ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, सब साउंड स्टेट में होने चाहिए. Progressivism become highly significant during the age of enlightenment in Europe. यूरोप में एनलाइटमेंट कब हुआ? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 19th सेंचुरी में. बहुत सारी चीजें आई जिसमें कि आया प्रोग्रेसिव एरा आया. प्रोग्रेसिव एरा जो पीरियड था वो सोशल एक्टिविज्म का था और पॉलिटिकल रिफॉर्म का था. यूएस और इंग्लैंड में 1890 से लेकर 1920 तक हुआ था. ये एरा था जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो भी कॉज प्रॉब्लम आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको दूर करना, अर्बनाइजेशन से जो समस्याएं उठ रही थी उनको दूर करना, प्रवास से, इमिग्रेशन से एंड पॉलिटिकल करप्शन जो कि समाज को जकड़ा हुआ था उसको दूर करना. फिर इलेक्टोरेट को प्यूरिफाई करना था. मतलब क्या है प्यूरिफाइंग द इलेक्टोरेट? मतलब होता है कि एक सही आइडेंटिटी वाले वोटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एनरोल करना. फिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, गवर्नमेंट का करप्शन को दूर करना. सोशल वर्क में क्या क्या हुआ? एंटी प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ आवाज उठी. कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ इत्यादि को कंजर्व किया गया. फॉरेस्ट को कंजर्वेशन, ये सारी चीजें शुरू हुई. तो ये सारी चीजें कब हुई? जब यूरोप में एनलाइटमेंट हुआ. एनलाइटमेंट कब हुआ? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद. प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेस less on how a teacher prepares student for jobs, more on what students are passionate about. यहाँ पर ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये इस चीज पर नहीं जोर देता है कि टीचर किस तरह से स्टूडेंट को किसी जॉब के लिए तैयार कर रहा है, बट इट फोकसेस मोर ऑन द about the passion of the students, what they want to do, what they are interested in doing, and what critical thinking they have developed, and how they think about the traditions, customs, or so about society. So their critical thinking, to develop their critical thinking, progressive education has given much emphasis. Montessori, Waldorf, Reggio Emilia schools, ये सारे जो स्कूल हैं ये प्रोग्रेसिव स्कूल हैं. इसमें इंट्रिंसिक इन ए मॉन्टेसरी स्कूल में क्या है? इज द आइडिया. मॉन्टेसरी स्कूल का आइडिया क्या है? अंतर्निहित आइडिया क्या है? दैट ए चाइल्ड नीड्स टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर टू लर्न. इसमें बच्चों को छोड़ा जाता है बहुत सारे म्यूजिक, गेम्स, कलरफुल पिक्चर्स, बहुत सारी चीजें उनको दी जाती हैं और बच्चों को एक्सप्लोर करना होता है देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. A student-centered classroom is built an autonomy and elimination of traditional teaching practices. Such classroom operates on a collaboration. बच्चों में आपस में collaboration, project-based learning, technology integration and plenty of conversation. यहाँ पर teachers and students के बीच और students के बीच बहुत conversation होता है जिससे कि learning उनका और बढ़ता है, क्योंकि सब डिस्कशन से सबसे ज्यादा नॉलेज होता है. तो इससे उनके आइडियाज बढ़ते हैं इंटरेक्शन से और सब एक दूसरे से मिलकर काम करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है. 5 स्टेप्स टू क्रिएट प्रोग्रेसिव स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम. 5 स्टेप्स बताए गए हैं जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम को क्रिएट करने में हेल्प करेंगे. फर्स्ट इज क्रिएटिंग ongoing projects which help in promoting mastery. इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते रहने चाहिए, ongoing होना चाहिए प्रोजेक्ट्स. Students have plenty of choice of projects. Projects should be so much that students
have plenty of choices, मतलब they can choose any project of their interest which enables them to demonstrate what they are learning. फिर दूसरा है integrate technology. In today's digital world, learners can be engaged in any project if they can choose from the hundreds of amazing free web tools provide excellent platform for presenting, curating and sharing information. So they should be open, students should be open to websites or web tools so that they can explore or they can create multiple projects of their interest and they can be able to share them with the other students. Third is replace homework with engaging in the class activities. Measuring achievement with grades and tests is a false barometer of learning because all controls in these areas are in the hands of teachers. मार्क्स या ग्रेड्स से को सही नहीं माना गया इस तरह की शिक्षा में. प्रोग्रेसिव एजुकेशन टीचर्स के दिए हुए मार्क्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय टीचर. अब टीचर बायस्ड भी हो सकते हैं, कोई उनका फेवरेट स्टूडेंट हो सकता है तो उसको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं. तो इट इज अ फॉल्स बैरोमीटर, they said. So when students are freed from instructions and are allowed to do their projects, जब उनको instructions नहीं दिया जाता है और फ्री छोड़ा जाता है, they become eager to do. तब वो खुशी खुशी करते हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाते हैं. Project which inculcates learning for the sake of learning, then they do the work or they learn for the sake of learning, not for getting the marks. Okay. Eliminate the rules and consequences. The workshop environment of bustling student-centered classroom encourage the pursuit of learning. तो रूल्स नहीं होते हैं जब, तो क्या होता है कि बच्चे फ्री फील करते हैं तो वो खुद से इंटरेस्ट लेकर बहुत सारी चीजों को सीखते हैं. Involve students in evaluation. तो स्टूडेंट्स को अब इवेल्युएशन में भी इन्वॉल्व करने की बात होती है कि अगर वो क्या सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग कैसे चल रही है, हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग. तो ये अगर उनको हम बताते रहें, फीडबैक देते रहें, तो दे विल बिकम द क्रिटिक ऑफ देयर ओन वर्क एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, विच इज अ रिमार्केबल पार्ट ऑफ अमेजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम. मतलब हमें जब आपकी कॉपी को खुद आप इवेल्युएट करोगे तो आपको अपनी गलतियां दिखती हैं और उसके बाद आप उसको अच्छा करने के लिए और मतलब उत्सुकता से खुशी खुशी प्रयत्न करते हो. बस अगर लेकिन टीचर जब आपको इवेल्युएट करते हैं और आपको डिमोरलाइज करते हैं तो आप उस समय डिसअपॉइंटेड हो जाते हो और आपका विलिंगनेस कम हो जाता है इम्प्रूव करने का. सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आज के जमाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.